ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் மிகவும் பணிவோட ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். சந்தோஷ சித்தத்தோட குழந்தை நிலையில் தெய்வீக அன்னையை பார்ப்போம். கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சகஸ்ராரம். வலது கை ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். மிகவும் அன்போட ஸ்ரீ மாதாஜியை அவளுடைய ஹிருதயத்தில் அழைப்போம். முழு மரியாதையோடு. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்குள் வாருங்கள் தாயே. தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதய கமலத்தில் அமருங்கள். எங்களுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாயே.
நாங்கள் முழுமையாக தாங்களிடம் சரணடைகிறோம். தாங்களே எங்களுடைய மாதா பிதா குரு தெய்வம். ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து வழி நடத்துங்கள். எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான அஞ்ஞானம் அறியாமையை முழுமையாக நீக்கி எங்களுக்கு ஆனந்த நிர்விச்சார நிலையை தந்தருளுங்கள். வலது கை மடிக்கு கொண்டு வருவோம். மெதுவாக கண்களை மூடி நம்முடைய கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து நம்மளுடைய இன்றைய நிலையை கவனிப்போம். இது நல்லா நேரா உட்காருவோம். கழுத்து லேசா குனிஞ்சிட்டு வலது உள்ளங்கை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல வைத்து பார்ப்போம். முன்னெதிர்கள் உணர்வுமாக கவனிப்போம். முழு கவனம் நம்முடைய சகசாரமும் வலது உள்ளங்கை, அது நடுவுல நம்ம என்ன உணர்வோம் அது மீதே வைக்கிறோம். மெதுவாக வலது கை மடிக்கு கொண்டு வருவோம். கவனம் சகஸ்ராரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக கவனம் மூலாதார சக்கரம், கணேஷ மந்திரம். ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக இரண்டு கைகளும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். ஸ்ரீ பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய சக்கரங்களும் நாடிகளையும் தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே.
எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் தந்தருளுங்கள். समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இடாநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது இருக்கட்டும். கவனம். இடாநாடி, இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசிராரத்தில் கவனத்தை வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ இடாநாடி சுவாமினி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடாநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். அதை பாதிக்கிற தமோ குணத்தோடு எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மகாகாளி, ஸ்ரீ பைரவரோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக வலது கை மடி மீது, இடது கை பூமி தாய் மீது வைப்போம். கவனம். வலது மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவாக எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருப்பீர்கள். தயவு செய்து எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்தை பாதிக்கிற எல்லா எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களை சுத்திகரிங்கள் தாயே. தூய்மை அடைய செய்யுங்கள். எங்களுக்குள் உள்ள ஷடரூபி சத்ருக்கள், காம குரோத லோப மோக மத மத்சரத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் தடையாக இருக்கிற எல்லா எதிர்மறைகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். ராட்சசஹந்திரியாக எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான ராட்சச குணங்கள், அசுர சக்திகளை முழுமையாக அழித்து விடுங்கள் தாயே. எங்களை நிர்மலமாக்கி விடுங்கள். தூய்மை அடைய செய்யுங்கள். ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள்.
स्वामीनाथ करावलंब स्तोत्रते पूर्वम् हे स्वामीनाथ करुणाकर दीनबन्धो श्रीपार्वतीश मुखपङ्कज पद्मबन्धो श्रीशादिदेव गणपूजित पादपद्म वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् देवादिदेवनुत देवगणाधिनाथ देवेन्द्रवन्द्य मृदुपङ्कजमञ्जुपाद देवर्षि नारद मुनीन्द्र सुगीत कीर्ते वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् नित्यानदान निरताखिल रोगहारीन् तस्मात् प्रदान परिपूरित भक्त काम श्रुत्यागम प्रणव वाच्य निज स्वरूप वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् क्रौञ्चासुरेन्द्र परिखण्डन शक्तिशूल पाशादिशस्त्र परिमण्डित दिव्यपाणे श्रीकुण्डलीश्रदुतटुण्डशिखीन्द्रवाह वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् देवादिदेवरथमण्डलमध्यवेद्य देवेन्द्रपीठनगरं दृढचापहस्तम् शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमान वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् हारादिरक्तमणियुक्तकिरीटहार केयूरकुण्डलसत्कवचाभिराम हे वीरतारक जयामर वृन्दवन्द्य वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् पञ्चाक्षराद्रिमनुमन्त्रितगाङ्गतोयैः पञ्चामृतैः प्रमुदितेन्द्रमुखैर्मुनीन्द्रैः पट्टाभिषिक्तहरियुक्तपरासनाथ वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् श्रीकार्तिकेय करुणामृतपूर्णदृष्ट्या कामादिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तम् भक्त्या तु मामवकलाधर कान्तिकान्त्या वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् सुब्रह्मण्याष्टकं पुण्यं यः पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वमुक्तिमायान्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः सुब्रह्मण्याष्टकम् इदं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति इति श्री शङ्कराचार्य रचित श्री स्वामिनाथ करावलम्बं स्तोत्रं सम्पूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம் வலது கை மடி மீது இருக்கட்டும் இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம் கவனம் பிங்களா நாடி ஸ்ரீ மாதாஜி ஸ்ரீ பிங்களா நாடி சுவாமினி தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் எங்களை பாதிக்கிற ரஜோகுணத்தோட எல்லா எதிர்மறைகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் ஸ்ரீ மகாசரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள்
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இரண்டு கைகளும் மடி மீது நல்லா நேரா உட்கார்ந்துக்கும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சுஷும்னா நாடி சுவாமினி. தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தயவு செய்து தாங்களுடைய எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். தூய குழந்தை உள்ளத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, சத் அசத் விவேக புத்தியை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் முழுமையாக தாங்களிடம் சரணடைகிறோம். எங்களுடைய சிந்தனை, பேச்சு, செயல் எல்லாவற்றையும் சமர்ப்பிக்கிறோம். எங்களை ஆட்கொண்டு அருளுங்கள். எல்லா மங்களமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. गणेश अथर्वशीर्षपूर्वम् ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि
त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, हृदं वच्मि सत्यं वच्मि, तव त्वं मामवक्तारम्, अवशोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोद्धातात्, अवाधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तः तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नाद सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माताजी தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசாவாக எங்களுடைய ஒவ்வொரு சக்கரங்களிலும் வந்து அதோட பண்புகளையும் தந்தருள வேண்டும் தாயே.
மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி மாதாவை மனமாற வணங்கி ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாட்சாத் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ஸ்ரீ கணேஷா ஸ்ரீ குண்டலினி மாதாவோட துணையால் மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். நாபி சக்கரம், பவசாகரத்தை சுத்தி வருவோம். அநாஹத சக்கரம், விசுத்தி, கவனம் ஆக்யா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி ஸ்ரீ மங்கள ரூபிணி சர்வ காம பிரதாயினி சர்வேஸ்வரி ஆதிசக்தி ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள். சிந்தனையற்ற நிலைக்கு எங்களை கொண்டு செல்லுங்க தாயே. தங்களுடைய அன்பு சக்தியை நுண்ணுதல்கள் நுண்ணுதல்களை எங்களுக்கு உணர செய்யுங்கள். நிர்வச்சார ஆனந்த நிலையை தந்தருளுங்கள். முழு கவனம் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஸ்ரீமாதாஜி கண்களை திறந்து ஸ்ரீமாதோட சொற்பொழிவை கேட்போம்.
आज पहिल्यांदा मी हिंदी भाषेत थोडंसं बोलणार आहे आणि नंतर मराठी भाषेत बोलणार. हिंदी भाषा शिकण्याचा प्रयत्न सर्वांनी केला पाहिजे, कारण ही आपली राष्ट्रभाषा आहे. पूना शहर का नाम वेदों में, पुराणों में सब जगह मशहूर है. इसको पुण्यपट्टनम कहते हैं, पुण्यपट्टनम. और इस जगह जो नदी बहती है उसका नाम है मूल नदी. जो यहाँ से मूल बहता है, ऐसी ये नदी यहाँ पर हजारों वर्षों से बह रही है और इस भूमि को पुण्यवान बना रही है. हम लोगों को पुण्य के बारे में पूरी तरह से मालूमात नहीं है. बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अगर कुछ गरीबों को दान दे दें और या हम कोई चीज़ किसी को बांट दें या कभी हम सच बोलें या थोड़ी बहुत कुछ अच्छाई कर लें तो हमारे अंदर पुण्य समा जाता है. इस तरह का पुण्य संचय होता तो होगा, लेकिन वो एक बूंद 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 बन करके न जाने कब सरोवर हो सकता है. पुण्य का जो अर्थ है सो जैसा जाना गया है कि ऐसे कार्य करना जिससे परमात्मा संतोषित हो, जिससे परमात्मा खुश हो, ऐसे कार्य हमें करने चाहिए. और जो आदमी ऐसे कार्य करता है वही पुण्यवान आत्मा होता है, क्योंकि जब वो परमात्मा को खुश कर देता है तो उस पर जो आशीर्वाद परमात्मा के आते हैं वो उसको पुण्यवान बना देते हैं. परमात्मा की जो शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं वो उसके अंदर एक नई चेतना कहिए या नया व्यक्तित्व कहिए, एक नई हैसियत कहिए, प्रकट करती है. उस हैसियत में मनुष्य ऐसा हो जाता है कि जो वो कहीं भी जाए, किसी भी घर में जाए, किसी भी दालान में जाए, किसी आंगन में जाए, किसी देश में जाए, विदेश में जाए, जहाँ भी जाए, वहाँ परमात्मा का आशीर्वाद झरने लग जाता है. जैसे कि एक छत्र छाया सी उसकी बन जाती है, ऐसे पुण्यवान पुरुष कहीं भी रहते हैं, उस जगह किसी भी तरह का प्रकोप होना हो तो वो टल जाता है. वो ऐसे लोग जब कभी शहर में, जंगलों में कहीं भी घूमते रहे तो वहाँ जितनी भी दुर्घटनाएं होने वाली थी वो सब खत्म हो जाती. सो इस पुण्य नगरी में इन्होंने जन्म लिया है, वो विशेष पुण्य लोग हैं, पुण्यवान लोग हैं. और इस पुण्याई में उन्होंने यहाँ जो कुछ पाया है उसे उन्हें अब आगे पाने का है. लेकिन जब पुण्यवान मनुष्य पुण्य नगरी में पैदा होता है तो वो अपने को दूसरों के साथ तौलने लग जाता है. वो ये सोचता है कि देखो हमने तो इतना पुण्य किया इसलिए हम यहाँ पैदा हुए, लेकिन यहाँ पे जो लोगों के पास पैसा है, जिनके पास धन दौलत है, वो तो दूसरे ही लोग, वो तो परमात्मा को भी नहीं जानते, भगवान को भी नहीं मानते और पूजा अर्चा भी नहीं करते, पर इनके पास तो इतना पैसा है, इतने धनवान लोग हैं, ये तो इतने सुखी लोग हैं, तो हम क्यों इतने दुखी? अगर हम पुण्यवान हैं तो हम दुखी क्यों? ऐसा उसके दिमाग में विचार आता है. जब ये विचार उसके अंदर आ जाता है तो वो फिर या तो सोचता है कि हमारी समझ में आ ही नहीं बात, कोई हर्ज नहीं, ऐसा सोच करके अपने धर्म में जुटा रहता है, और या तो वो बदल जाता है और वो सोचता है कि नहीं, किसी तरह से भी पैसा जोड़ना या दुनिया की चीज़ें दौड़ना, दुनिया की इज्जत दौड़ना जोड़ना, यही सबसे बड़ी बात है. और उसी नई एक नए दौर में वो दौड़ने लग जाता है. तब उसका पुण्य क्षय हो जाता है, उसका सारा पुण्य जो है वो नष्ट हो जाता है. लेकिन पुण्यवान पुरुष को
पैसे की इच्छा होना बड़े आश्चर्य की बात है। कलयुग में सब कुछ हो सकता है। ये मुझे खुद देख करके आश्चर्य होता है कि कलयुग में अगर कोई रियलाइज सोल भी पैदा हो तो वो भी शराब पी सकता है, ड्रग्स ले सकता है, मारामारी कर सकता है, दुनिया भर के काम एक रियलाइज हो जिसे कि हम पुण्यवान मनुष्य समझते हैं, वो ये सब कर सकता है। ये कलयुग की खिंचाव है, उसका एक तरह का असर है, उसका वातावरण इतना ज़बरदस्त है। पुण्यवान मनुष्य भी जब संसार में आता है और जब इस चीज़ की तरफ में उसकी नज़र जाती है तो वो उधर खिंच जाता है और उसके अंदर ये कमज़ोरियाँ धीरे धीरे आने लग जाती हैं। ये कलयुग की एक बड़ी भारी हमारे ऊपर में दहशत है, लेकिन इसका एक दूसरा इलाज है कि ये जो दहशत हमारे ऊपर है और जो हमारे पर कलयुग छाया हुआ है, ये अगर सोच विचार किया जाए तो क्यों आया, कलयुग आने की ज़रूरत क्या थी? अगर कलयुग आया है तो उसका भी तो कोई कारण होना चाहिए। उसके बारे में एक दमयंती आख्यान में लिखा हुआ है कि एक बार दमयंती के पति नल को कली मिल गया, उसने उसे पकड़ लिया, उसे कहा कि देखो तुमने हमारे पत्नी से विछोह कराया था और इतना हमें दुख दर्द दिया, अब मैं तुम्हें मार डालूँ। तो कली ने कहा कि हाँ भाई ये तो बात सही है, तुम चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन मेरा भी एक महात्म्य है। उसने कहा तुम्हारा क्या महात्म्य हो सकता है, तुम तो सब दुनिया में भ्रम डालते हो, उनको भी भ्रम में फंसा देते हो और गलत रास्ते पर लोग चले जाते हो। तो उनका कि महात्म्य बहुत बड़ा है कि जब ऐसा होता है और ऐसी हालत में ही मनुष्य की अग्नि परीक्षा होती है, उस वक्त ही वो जाना जाता है कि आदमी कितना सच्चा है या कितना झूठा है। इसी तरह से पहचाना जा सकता है कि आदमी में कितना पुण्य है और कितना अपुण्य है। अगर उसके आगे कोई अग्नि परीक्षा न हो तो वो जाना नहीं जा सकता। जैसे कि बाइबल में भी कहा गया है कि जो मनुष्य कलयुग में पैदा होगा उसका लास्ट जजमेंट हो जाएगा, उसको जाना जाएगा कि उसमें पुण्य कितना है अपुण्य कितना है। तो इसका ये महात्म्य है कि इससे हमारी अग्नि परीक्षा होती है। और उसने ये भी कहा कि इतना ही नहीं कि अग्नि परीक्षा होगी, ठावड़ेला फोटो दो ना, कहा मेरा कोने बस तिकडे दारा, अग्नि परीक्षा जो हमारी होने वाली है इस कलयुग में, इस कलयुग के वक्त में हमारे लिए एक और बड़ा भारी आशीर्वाद है। वो ये कि नल को बताया गया कि देखो जिस वक्त कलयुग आएगा, जिस वक्त अग्नि परीक्षा होगी, तब हजारों लोग पार हो जाए, हजारों लोगों को आत्म ज्ञान हो जाए, आत्मबोध हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और इस आत्म साक्षात्कार के सहारे वो एक नई जिंदगी को प्राप्त होंगे और उनमें परिवर्तन हो जाए। जो आज गिरी कंदरों में परमात्मा को खोजते फिर रहे हैं वो उसे प्राप्त करेंगे। ये इसका वरदान है। इसी बीच अब हम यहाँ पूना में आए हैं, जिसको कि मैं पुण्य पट्टनम कहती हूँ, जहाँ आने से मनुष्य को पुण्य का प्रभाव पता चल सकता है। यहाँ भी अगर आप सोचें तो आपको लगेगा कि यहाँ भी वही कलयुग है जो जहाँ है, हर जैसे वहाँ पे था वैसा यहाँ भी है। ये बात ज़रूर मानी जानी चाहिए कि जो चीज़ छिपी है, जो चीज़ दिखाई नहीं देती, उसके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जब ये चीज़ खुल जाती है, आपके अंदर की चेतना जब खुल गई है, उससे जब आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इस पूना में इतने गहनता के कार्य हुए हैं। यहाँ पर अनेक साधु संतों ने बैठ कर के तपश्चर्या की हुई। तुकाराम जैसे इतने बड़े महान पुरुष इसी पूना के पास ही में आए और यहीं रहे, उनका यही वास्तव्य है। तो इसका जो आकर्षण है वो उन लोगों के लिए है जो पुण्य को खोजते हैं और पुण्य में डूबना चाहते हैं। उन लोगों के लिए नहीं जो पैसा ढूंढते हैं और दुनिया भर की दौलत ढूंढते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने लिए,
किसी दूसरे के लिए नहीं। जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं या चीज़ें इकट्ठा करते हैं, जो हम अपने लिए सत्ता इकट्ठा करते हैं, या हम किसी तरह का बड़ा भारी नाम, जिसको फेम कहना चाहिए, इस तरह का नाम इकट्ठा करते हैं, ये सब अपने लिए। लेकिन पुण्य जो है वो दूसरों पे असर करता है। जैसे एक दीप है, इस दीप पे आपको इसकी सफाई करनी है तो आप इसमें कुछ भी चमका दीजिए, इसको आप चांदी का बना दीजिए, चाहे आप सोने का बना दीजिए, इसको जिस भी चीज़ का चाहे आप बना सकते हैं, इस पर जो भी मेहनत करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन बेकार, बेकार, क्योंकि इसमें दीप नहीं जला। जब इसमें दीप जलेगा तभी इसका उपयोग है। इसी प्रकार मनुष्य कुछ भी हो बेकार है, जब तक उसके अंदर आत्मा का दीप नहीं जलता तब तक वो बेकार है। और जब उसमें दीप जल जाता है तो वो पुण्यवान आत्मा हो जाता है और उसके अंदर से बहता हुआ प्रकाश हजारों दीप संसार में जला सकता है। इसलिए आज की पुण्य नगरी में इस पूजा का आवाहन बहुत बड़ी चीज। शक्ति का जब संचार पुण्य में हो तो वो पुण्य हजार गुने बढ़कर के अत्यंत शक्तिशाली हो सकता है। पुण्य की शक्तियाँ अनेक हैं, लेकिन उसमें अंदर अगर शक्ति ही संचरित हो जाए तो फिर क्या कहेंगे। पुण्य अभी तक जो जो लोगों ने जाना है वो ऐसा ही है कि पुण्यवान लोग जो होते हैं उनको सब लोग सताते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं होती, उनके पास किसी तरह का कोई संरक्षण प्रोटेक्शन नहीं होता है, वो हर समय दबे रहते हैं लोगों से और उनको जो चाहे वो खींच ले जाता है, जो चाहे उन्हें बेवकूफ़ बना सकता है। लेकिन शक्ति का संचार होते हैं इस पुण्य से वो प्रगाढ़ और प्रचंड प्रकाश निकलते हैं कि किसी की मजाल नहीं, किसी पुण्यवान आदमी को हाथ लगा। जो हाथ लगाएगा वो जानेगा कि ये कोई प्रचंड चीज़। इसी प्रकार अगर कोई आदमी ये चाहेगा कि उनका पैसा नोच ले या उनको ठग ले या सताए तो अब सता नहीं सकता। ये कलयुग का बड़ा भारी आप पर आशीर्वाद है कि कलयुग में ही ये प्रकाश आ सकता है और जैसे ही अंदर ये प्रकाश आ जाएगा कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपकी हत्या नहीं कर सकता, कोई आपसे कोई चीज़ छीन नहीं सकता। आप पूरी तरह से संरक्षित हो जाते हैं और आप स्वयं इतने शक्तिशाली होते हैं कि जहाँ खड़े हो जाइएगा वहाँ कोई सा भी आतंक, आफत, कोई भी परेशानी हो उसे आप एकदम खड़े होने से ही उसको खत्म कर सकते हैं। तो पुण्य में शक्ति का संचार यही आज का आवाहन है और आज की पूजा में यही करने का है। आता सगळ्यांना समजलंच असेल मी हिंदी भाषेत काय सांगितलं ते, कोणाकोणाला समजलं नाही भाषेला मराठी भाषा फार चांगली आहे, कारण त्याच्यामध्ये तिला तोड नाही, म्हटलं पाहिजे तरी चालेल, तिला तोड नाही। विशेष करून सहजयोग हा मराठी भाषेतच समजवता येतो मला। आणि ह्या ज्या गोष्टी मी हिंदी सांगितल्या त्याला कारणच आहे की हिंदी लोकांमध्ये तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की आपल्या संस्कृतीबद्दल फार कमी माहिती, त्यांच्या भाषेतच नाही, त्यांना काही माहीतच नाही। पुण्य म्हणजे काय ते माहिती, तेव्हा थोडंसं हिंदीत बोललेलं बरं, कारण तुम्हाला सगळं आधीच पाठ आहे, सगळं माहिती आहे, सगळं पाठ आणि नंतर सपाट तसाही प्रकार आहे म्हणा। पण तरीसुद्धा असं म्हटलं पाहिजे की आपल्याला फार मोठी संतांची इथे शिकवण जी मिळालेली आहे हा एक इतका मोठा आशीर्वाद आहे। त्या आशीर्वादाने संस्कृती काय आपल्याला माहिती, पुण्य म्हणजे काय आपल्याला माहिती, चांगलं वाईट काय ते आपल्याला माहिती आहे, माहिती कळतं पण वळत नाही, कळतं सगळं की हे सांगितलेलं आहे, हे चांगलं आहे, हे वाईट, असा पुण्यसंचय आपण पुष्कळ केलेला। म्हणूनच त्या पुण्यामध्ये या पुण्यनगरीत आपला जन्म झाला, हे कबूल। पण तरीसुद्धा इतर लोकांना बघून आपल्याला असं वाटतं की बा आम्ही पुणेकर म्हणजे काही ते श्रीमंत नाही, मुंबईकर जास्त श्रीमंत आहे। त्याच्यावर असं वाटतं की मुंबईपेक्षा दिल्लीचे लोक जास्त श्रीमंत आहेत, त्याच्यावर पैसे जास्त, तर दिल्लीला आणखी म्हणजे
तख्तच असल्यामुळे तिथे त्यांच्याजवळ मान पान आदर हे सगळं काही बाह्यता पुष्कळ दिसतं. तेव्हा असं वाटतं वा एवढे मोठे लोक आहेत हे, ह्यांचं केवढं मोठं, पण आम्ही काय, आम्ही अजून गरीबच आहोत. पण तुम्ही पुण्यवान आहात. पण ह्या पुण्यातच असे लोक आहेत की देवालाच मानत नाही. मोठे मोठे धुरंधर मी पाहिले, मोठे मोठे विद्वान लोक मी पाहिले, ते देवालाच मानत नाही. म्हणजे इतके शिष्ट झाले ते या पुण्यात राहून, या पुण्यनगरीत राहून सुद्धा लोक इतके शिष्ट झाले आहेत, इतकं डोकं त्यांचं खराब झालं आहे की ते म्हणतात देवच नाही. अहो तुम्ही जर देवाला पाहिलंच नाही, देवाला जाणलंच नाही, तर तुम्ही इतका अरेरावीपणाने कसं म्हणता की देव नाही आहे म्हणून? आधी बघा तर खरं, एक अनुभव तो घेऊन बघा. त्याच्यात तुमचं काय नुकसान होणार आहे? काहीच होणार नाही. पण तुम्ही स्वतःला सगळं जाणलेलंच नाही आहे. तेव्हा जे सगळे सांगून गेले ते सगळे मूर्ख होते. आम्ही एक अतिशहाणे, आणि आम्ही असं म्हणतो की परमेश्वरच नाही, आणि आता तुम्ही परमेश्वर सिद्ध करून दाखवा, नाहीतर आम्ही परमेश्वर मानायला तयार नाही. असं जरी म्हटलं तरीसुद्धा त्याला तयारी आहे. पण आम्ही मानतच नाही परमेश्वर आहे असं म्हणून जर कोणी डोळे झाक केली तर अशा माणसाला समजावणं फार कठीण काम. आणि तशातले बरेच लोक या तुमच्या पुण्या शहरात आहेत. बरेच लोक आहेत, म्हणजे इतके कुठेच नाही आहे जे उघडपणाने म्हणतात परमेश्वर नाही. असे इतके लोक कुठेच नाही आहेत जितके तुमच्या पुण्या शहरात. जितके इथे गणपती आहेत आणि त्याच्याहून जितके इथे मारुती आहेत त्याच्याहून हे महामारुती बसलेले अतिशहाणे. आणि त्यांना असा पूर्ण विश्वास आहे की आम्ही जे म्हणतो ते अगदी खरं आहे. आम्ही अति हुशार लोक आहोत, आम्हाला सगळं शास्त्र माहिती आहे, आम्ही अगदी विद्वान आहोत आणि सगळं खोटं आहे, याच्यात काय अर्थ. तेव्हा जिकडे एवढं पुण्य आहे, इथे इतकं कमळासारखा इथे सुंदर सुगंध पसरलेला आहे, तिथेच असल्या तऱ्हेचा विकृतपणा पण पुष्कळ जास्त पसरलेला. आणि त्यामुळेच या पुण्यामध्ये लोकांच्या डोक्यामध्ये भ्रांती फारच वाढलेली आहे. त्यांना हे समजत नाही आहे की धर्म आहे खरा की नाही, परमेश्वर आहे किंवा नाही. हे मोठे मोठे धुरंधर स्वतःला इथले लीडर्स म्हणवतात, म्हणा तसे पैसे बिशे खूप खातात, ते सगळं करतात, धंदे सगळे करतात. पण ते बरं आहे, ते म्हणतात आमचा जर परमेश्वरावरच विश्वास नाही आणि धर्मावरही विश्वास आहे तर आम्ही चांगलेपणाने कशाला राहायचं, कसंही राहिलं तरी चालेल, आम्ही मॉडर्न झालो. अशी मंडळी पुण्याला जास्त आहेत मुंबईपेक्षा. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, मुंबईला लोक तरी भीतात, इतकं कोणी बोलणारं मी पाहिलं नाही. पण पुण्याला मराठी भाषेमध्ये बोलणारे असे अनेक झाले जे परमेश्वराची टिंगल काढायची, नंतर परमेश्वर नाही म्हणून सिद्ध करायचं, परमेश्वरावर लोकांनी विश्वास ठेवला म्हणजे तुम्ही महामूर्ख आहात, असं कशाला करता, असे म्हणणारे सुद्धा इथे लोक आहेत. मग असे असल्यावरती जर समजा एखाद्या बोटीला एक जरी भोक पडलं तर ती बुडते, आणि ते इतकी भोकं असल्यावर त्या पुण्याचं काय होणार. त्यात भर घातलेली आहे भिक्कारड्या लोकांनी. म्हणजे भिक्कारडे लोक म्हणजे असे की आम्ही सहयोगात सुद्धा लोक भितात. पुण्याच्या लोकांना बोलवायचं म्हणजे माताजी पुष्कळशी असेच लोक ना, तुम्ही बघा. मग त्यांचं कसं करायचं, म्हणजे भितात त्या गोष्टीला, हे भिक्कारडेपणा करायचं. आम्हाला अनुभव इथला असाच आहे. इथे आलं की लोक आपले फुकटात जर जेवायला मिळालं तर उत्तम, माताजी करतात, मग काय माताजी पैसे द्यायला तयार आहेत, मग कशाला. ही एक प्रवृत्ती म्हणजे मनाची श्रीमंती नाही. आणि ही येण्याचं कारण सुद्धा हेच आहे की जे पुण्य पुण्य म्हणून शिकवतात, ज्या लोकांनी पुण्य पुण्य म्हणून करा म्हटलेलं आहे, जे लोक तुमच्या समोर येऊन प्रवचनं करतात आणि सगळं काय करतात, ते स्वतः पैशाच्या मागे असल्यामुळे बाकीच्या लोकांना असं वाटतं की हे तरी काय मोठं आम्हाला ब्रह्मज्ञान सांगायला बसले आहे, पण स्वतः हे असेच आहे. तेव्हा सर्व जनतेमध्ये या दोन्ही गोष्टींचा परिणाम झालेला आहे. एक तर जे धर्मप्रवर्तक आहेत किंवा धर्माबद्दल बोलतात ते स्वतः तुमचे पैसे खातात. हां, तुम्हाला काय पाहिजे असं विचारतात, काय पाहिजे, मुलगा पाहिजे ना, चालेल, पण 100 रुपये मुलगा. आणि जर तुम्ही 50 रुपये दिले तर तुम्हाला मुलगी होणार नाही. बाबा 100 काय, तुम्ही 108 घ्या, पण आम्हाला मुलगाच पाहिजे. कशाला मुलगा, म्हणजे उद्या पैशाला बरा. सुनेने हाकलून लावलेलं कुणाच्या लक्षात येणार नाही, पण त्यासाठी म्हणून आम्हाला मुलगा पाहिजे, कारण आम्हाला पैसे कमवता असला पाहिजे. आणि त्याने मग दरिद्रता वाढत गेली, आणि ती दरिद्रता स्वभावात सुद्धा आलेली. कारण सगळीकडे तुम्ही रोज आता हजारो देवळं आहेत तिथे, हजारो देवळं, प्रत्येक देवळात गेलं किंवा देवाला पैसे घाला. त्या देवाला काही पैसे समजतात का? कधी देवाला पैसे समजतात? त्यांनी कधी पैसे पाहिले आहेत का? काय असतात तो प्रकार. त्यांना पैसे घाला देवाला, इथे 4 पैसे तुम्ही इथे घाला, इथे 1 पैसा घाला म्हणजे झालं.
पूजा करायची म्हणजे काय, केवढा मोठा तुम्ही नारळ आणा, त्यातले आम्ही तुम्हाला एवढा नारळ देतो, बाकी सगळं आमच्या पोटात. हे रोज अगदी बघून बघून माणसाच्या मनाची जी श्रद्धा, जिच्यामध्ये आंतरिकता असायला पाहिजे, ज्याच्यामध्ये स्वच्छता असायला पाहिजे, ज्याच्यामध्ये विश्वास असायला पाहिजे, त्याच्या जागी फक्त हे की हा आता आहे ना, देखला देवा देव दंडवत, बस, त्याच्या पुढे काय नाही. ही एक प्रवृत्ती आल्यामुळे, पैसा सगळं काही झाल्यामुळे कसंही मिळाला तरी चालेल. मान पान स्वतःच्याबद्दल काही आत्मसन्मान ह्याचा कुणाला विचार राहत नाही. आत्मसन्मान नकोच, कशाला, मिळतं ना मग, देतात ना मग, कशाला घ्यायचं. तर ह्या एका फारच विचित्र परिस्थितीमुळे पुण्यामध्ये सुद्धा जी आपण प्रवृत्ती बघतो ती अशी की एवढ्या पुण्यवान स्थितीमध्ये, इतक्या पुण्यवान जागेमध्ये साधू संत दिसत, साधूंची लक्षणं दिसत, साधूसारखं लोकांचं वागणं दिसत नाही. साधूला केवढा मान असतो. एखाद्या साधूला घरी बोलवायचं म्हणजे जन्मजन्मांतरातली तुमची तपस्या पाहिजे, नाही तर तो तुमच्या दारात येणार कसा. म्हणजे खरा साधू म्हणते, उपटसुंभांची गोष्ट सोडा, तो तुमच्या दारात येण्यासाठी तुम्हाला केवढं तरी पुण्य खर्ची घालावं लागेल, तेव्हा तो तुमच्या दारात येईल. पण आता उठल्या सुटल्या इथे रस्त्यावरती साधू संत फिरतात, त्यांच्यामध्ये काही साधुता नाही. आणि ती साधुता नसल्यामुळे पुण्यनगरी म्हणजे काय, ह्याच्यातल्या देवळामुळे पुण्य झालेली नाही, इथल्या मानवांच्यामुळे झालेली. यांच्या मानवामध्ये किती साधू आणि संत आहेत, कितींमध्ये साधूची लक्षणं आहेत. तर इथल्या लोकांची जी एक स्वतःची क्वालिटी आहे, स्वतःचं जे एक चारित्र्य आहे, ते कसं आहे, त्याच्यावर पुण्य अवलंबून असतं. ते जर पुण्य आपण कमवलेलं असतं, आत्मसन्मानाचं, तसंच आत्मसाक्षात्काराचं जर आपण पुण्य कमवलं आणि त्यात आपण आपली वाढ करून घेतली, तर इथे काही कठीण काम नाही. कारण जमीन इथली फारच सुपीक आहे. पुण्यासारखी जमीनच नाही संबंध ब्रह्मांडात. पण जमीन असली तरी प्लास्टिकच्या बियांनी काही झाडं येणार नाहीत. आणि प्लास्टिकच्या बिया लावून ठेवल्यात तुम्ही, तर करायचं काय आम्ही. अत्यंत सुपीक जमीन आहे. पण डोकीसुद्धा इतकी सुपीक आहे तिथे की त्या सुपीकपणामध्ये जे जे निघालेलं आहे ते तुम्हाला सांगितलं मी आधीच, की देवावर विश्वास ठेवायचा नाही. देव म्हणजे कोण, वाह्यातासारखं काहीतरी, म्हणजे अत्यंत ज्याला म्हणतो ना आपण अत्यंत कमी दर्जाचं असं लिखाण सुद्धा लोकांनी करून ठेवलेलं आहे. देवाची टिंगल करायची जसं का त्यांच्या खिशातच बसला नाही. त्याच्याबद्दल काही आदर काही सुद्धा नाही. दुसरे लोक जे सांगितले मी की त्यांनी धर्माच्या नावावरती इथे इतकी कमाई केली, लोकांना इतकं दिशाभूलीत घातलेलं आहे. तर तऱ्हेचे इथे प्रकार आम्ही पाहिले. इथे पुण्याला जेव्हा मी पहिल्यांदा आले होते तेव्हा माझ्या प्रोग्रामला एक बाई आल्या होत्या, पुष्कळ लोक होते. त्यांच्या अंगात भूत आलं, त्या लागल्या हू करायला. सगळ्या बायका कुंकू लावायला धावल्या त्यांच्या. त्यांना पहिल्यांदा मी पाहिलं की हा प्रकार काय मूर्खपणाचा आहे. तिच्या अंगात भूत आलं, तिला कुंकू लावायला कशाला धावून राहिले आणि तिच्या पायावर पडायला लागले. तर मी एकदम लाईट्सच गेल्या नशिबाने आणि मी मागावर दारातून निघून आले. म्हटलं या लोकांना काय सांगावं. म्हणजे हे सगळं असून त्याशिवाय महामूर्खपणा पण आहे. म्हणजे एका बाईच्या अंगात आलं तर ते अंगात येतं हे त्याच्या लक्षात येतं. अंगात आलं म्हणजे देवी आली. अहो देवी कोणाच्या अंगात त्याला काही सोपं काम आहे का, फार कठीण काम आहे. देवीला झेपू शकतं का कोणचंही अंग. अंगात म्हणजे देवी आली आणि ही देवी नंतर मग भांडी घासते, लोकांची धुणी धुते आणि पैसे मारते आणि मग तिच्या अंगात देवी येते. हा जो धर्मभोळेपणा किंवा बाबळेपणा म्हणा, पण मी ह्याला महामूर्खपणा म्हणेन, हा इतका जास्त आहे की त्याच्यामुळे लोकांना दिशाभूलच म्हटली नाही पाहिजे, पण एक तऱ्हेची भ्रांती आलेली. आमच्या इथे पुष्कळ अशा लेडीज येत होत्या की ज्यांच्या अंगात येत असेल, देवी यायची, त्यांना सगळं व्हायचं आणि झीट येऊन पडायचे. माझ्यासमोर आल्या की झीट यायची त्यांना.
म्हणजे प्रोग्रामच करणं कठीण झालं होतं. तेव्हा म्हटलं या पुण्यनगरीत एवढी भूतं कुठं आली बाबा, तमके बुवा तमके बुवा असं का. आणि मग त्या बुवानी केलं काय, नाही फक्त अंगारा दिला मला, हो का, तुम्ही काय केलं, मी खाल्ला तो झालं. म्हणजे अशा तऱ्हेचे त्याला म्हणायचे स्त्री आचार आणि ब्राह्मणाचार, ह्याच्यामध्ये हा संबंध पुण्यात डुबून गेला. तेव्हा धर्माचा हा तुम्ही निकाल लावला आणि बाकी परमेश्वराची तर तुम्ही गोष्टच काढू नका. कारण परमेश्वराच्या गोष्टीबद्दल अतिशहाणे बसलेलेच आहेत सांगायला की परमेश्वर म्हणजे नाहीच आहे, सायन्स म्हणजे सगळं काही. आता नारळीकर हे पुण्याचेच आहे, त्यांनी असं सांगितलं की ह्या ज्या संबंध सृष्टीला जे कार्य करते इथं, त्याच्यामध्ये इंटेलिजन्स आहे, त्याला डोकं आहे. ही पहिली गोष्ट त्यांनी सांगितली. सायंटिस्ट आहे पण पुण्यातला आहे, तेव्हा त्याच्या डोक्यात आली ही गोष्ट. पण तरी सायंटिस्ट जाणार कुठपर्यंत. बाहेरून तुम्ही जर एखाद्या झाडाची निगा ठेवायची म्हटली तर पानाला तुम्ही द्याल पाणी तर जाणार का आतमध्ये, फुलाला दिलं पाणी तर जाईल का आतमध्ये, नाही जाणार. तुम्हाला त्याच्या मुळातच पाणी घालायला पाहिजे आणि त्याच्या मुळात पाणी घालण्यासाठी तुम्हाला उतरायला पाहिजे आणि त्यासाठी तुम्हाला सुद्धा सूक्ष्म झालं पाहिजे. ती सूक्ष्मता आल्याशिवाय तुम्ही काहीही कार्य केलं ते बाह्यातलं आहे, सगळं बाह्यात राहून जाणार. पण इतकं बाह्यात आलेलं आहे की पुण्यवान शोधून सापडत नाही. मग ते झालं सगळं काही व्यवस्थित म्हटलं पाहिजे की संबंध भूतांचं राज्य जरी म्हटलं तरी ते व्यवस्थित होऊ शकतं, किंवा शैतानाचं म्हटलं तर त्याचंही होऊ शकतं, व्यवस्थित होऊ शकतं. पण तरीसुद्धा ही भूमी इतकी कडक आहे की कोणी आले तर त्यांना हाकलून लावते, फेकून लावते, त्यांचं जाळपोळ करते. त्या भूमीचं हे वैशिष्ट्य आहे. पण हे सगळं असून सुद्धा एक जर आपण एवढं लक्षात ठेवलं की आपण अशा महान भूमीमध्ये जन्माला आलो जी संबंध ब्रह्मांडामध्ये पुण्यवान आहे. आता ह्याच्याहून श्रीमंती काय असणार, ह्याच्याहून मोठेपणा काय असणार, ह्याच्याहून मान आदर काय असणार. अहो तुमच्या पुण्याच्या मातीचं एवढं महत्त्व आहे. लोक इथून सगळे पुण्याची माती घेऊन गेले, तुम्हाला माहिती नाही. आम्ही लंडनला ते आता आश्रम बांधा तर तिथे माती घेऊन आले. म्हटले माती कुठं आणली, म्हणजे पुण्याची आम्ही माती घेऊन. त्यांना अक्कल आहे तुमची आणि इथे अतिशहाणे सांगतात की देव नाही. आणि ती माती घातली त्यांनी आपल्याला. त्याचे आता तरी मी किती वर्णन करून सांगितलं, किती म्हटलं तरी तुम्ही म्हणाल माताजी ह्याचा साक्षात द्या. आता देऊ का सर, कारण ह्या सर्व गोष्टी मध्ये मध्ये असल्यामुळे तुम्हाला ह्याच दिसतात. कारण ह्या ढोबळ आहेत ना, ह्या बाह्यातल्या आहेत ना, ग्रोस आहेत ना. सूक्ष्मातलं दिसायला सूक्ष्म आला पाहिजे. तुम्ही सूक्ष्म झाला म्हणजे मी काय म्हणते ते सगळं तुम्हाला कळेल, म्हणून सूक्ष्म व्हायला पाहिजे. जय श्री माता जी. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
जय श्री माता जी. தங்களிடம் ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறி நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். जय श्री माता जी. जय श्री जय श्री माता जी. जय श्री माता जय श्री माता जी. जय श्री जय माता जी. श्री जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. जय श्री माता जय जी. श्री माता जी. जय श्री माता जी.